हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज देवश्री हियर। आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है कंपटीशन इन इकोलॉजी। जो भी आपके जस्ट अ मिनट गाइस, देयर इज सम इशू। Okay, fine. So we are going to see the topic competition in ecology, and this is a topic from the unit 13, that is ecology, right? Okay. So let me tell you सबसे पहले कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं Let's Crack CSI UGC NET के YouTube चैनल में, and this is me here working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA or DEBA1. तो आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आपको फ्री सेशंस अटेंड करने के लिए अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करना है, राइट? वंस यू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, यू नीड टू गो फॉर द फ्री लाइव क्लासेस. once you downloaded the app, Unacademy learning app, you need to go for free live classes, and there you can search my name Devashri, right? So you will be getting my profile. You need to follow me so that you can get the updates, and you can also message me on the platform. So from this, by using this referral code, you can attend the free sessions. You can also switch for Unacademy Plus subscription. You can also switch for Unacademy Plus subscription, and next you can also use my referral code for any categories. For any categories means whether you are preparing for UPSC, SSC, NEET, CSI or NET. So my code is valid for all the categories, so you can use it. So what are the benefits of Unacademy Plus? Our daily live classes, structured courses as per the CSI syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. And for attending live sessions, you can use my referral code DEBA or DEBA1. Right? You can unlock the free live classes. You need to download the Unacademy learning app. Unacademy learning app, then you need to move to free live classes. Then you can search my name by Devashri, right? So you'll be getting my profile. You need to follow me for more updates. I am taking special classes on Unacademy platform that is free of cost. Just you need to use my referral code DEBA or DEBA1. If we move to the price list, if you join for 1 month, the price is around 2100. For 3 months, the price is around 5250. For 6 months, it is around 9450. For 12 months, it is 11550, and for 24 months, it is 16800. And make sure our subscription prices will be increased soon. And if you use my referral code DEBA or DEBA1, you will be getting a 10% off. So the verified prices are for 1 month, it is 1890. For 3 months, it is 4725. For 6 months, it is 8505. For 12 months, it is 10,395. And for 24 months, it is 15,120. Right? So if you are planning for Unacademy subscription, you can go ahead with the help of my referral code to get the 10% off and to experience the maximum benefit at the minimum price. So today's topic of discussion is competition in ecology. We all know about competition. It is an interaction where both the organism faces loss. So we can call it, basically it is a negative interaction. तो ये टॉपिक आपका इकोलॉजी से है। तो सबसे पहले वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। क्या है ये कंपटीशन? अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन बेसिकली आपका है क्या, ये एक काइंड ऑफ स्ट्रगल हम बोल सकते हैं। एक काइंड ऑफ स्ट्रगल बोल सकते हैं किनके बीच, दो ऑर्गेनिज्म के बीच। क्यों स्ट्रगल? क्योंकि रिसोर्सेस के वजह से। अगर मान लो ये आपका एरिया है और मैंने इस एरिया में यहाँ पे कुछ फूड रखा है,
राइट। और मैंने यहाँ दो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है, मान लो यहाँ पे है X, यहाँ पे है Y। अब ये दोनों क्या करेंगे, इस फूड के लिए compete करेंगे, कंपटीशन होगा इन दोनों के बीच। क्यों होगा कंपटीशन? क्योंकि खाने के लिए कौन ज्यादा खाएगा, किसको ज्यादा अमाउंट ऑफ खाना मिलेगा, इस बात के लिए इनके बीच में कंपटीशन होगा। सो इकोलॉजिकली हम अगर कंपटीशन को डिफाइन करते हैं तो इकोलॉजिकली हम इसको बोलते हैं इट इज अ स्ट्रगल बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर द सेम रिसोर्सेज विद इन एन एनवायरनमेंट। सेम रिसोर्स के लिए ये क्या करते हैं, ये compete करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। Resources are components of the environment that are required for survival and reproduction, such as food, water, shelter, light, territory, and substrate. ये जो मैंने आपको food का example दिया, it is a kind of, you can say it is an example of resources. ये क्या है आपका, ये एक एग्जाम्पल है रिसोर्सेस का। तो अगर मैं रिसोर्सेस की बात करूं, जब भी मैं रिसोर्सेस बोलूंगी दैट विल इंक्लूड योर फूड, वाटर, लाइट, टेरिटरी, शेल्टर, सबस्ट्रेट। तो ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं। और जब भी अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी एक एरिया में, अगर मान लो यहाँ पे एक एरिया है, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच कंपटीशन होगा। क्यों कंपटीशन होगा? शेल्टर के लिए, राइट। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रिसोर्सेस के लिए। कौन से रिसोर्सेस? इन दिस फर्स्ट केस द रिसोर्स इज फूड, इन द सेकेंड केस द रिसोर्स इज योर शेल्टर, राइट। सो अगर हम कंपटीशन को डिफाइन करते हैं, बेसिकली इट इज अ स्ट्रगल बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स फॉर द सेम रिसोर्सेज विद इन एन एनवायरनमेंट, राइट। तो ये जो आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकते हैं, शेल्टर भी हो सकते हैं, लाइट भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज कंपटीशन। कमिंग टू योर अगर मैं इसको एक और एग्जाम्पल दूं, अगर मान लो ये एक एरिया है और मान लो यहाँ पे 3 चेयर्स हैं। क्या है आपका? 3 चेयर्स है। मान लो 2 चेयर्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म इस प्लॉट में आएंगे वो है 3 ऑर्गेनिज्म, 1 2 3। अब इनके बीच कंपटीशन होगा। क्यों? कौन सा 2 जाके चेयर को ऑक्युपाई करेंगे, राइट। तो इन तीनों के बीच में जो कंपटीशन होगा वो चेयर्स को लेके होगा, राइट। तो यही है कंपटीशन, मतलब क्या? अ काइंड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स फॉर द सेम रिसोर्सेज। सेम रिसोर्स के लिए जब वो स्ट्रगल करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपटीशन। अगर मैं बात करूं इंटर स्पेसिफिक, कंपटीशन 2 तरह के हो सकते हैं। अगर मैं कंपटीशन को डिफाइन करूं आपका, ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा होता है आपका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जब भी इंटर स्पेसिफिक की मैं बात करूं, इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है आपका? इट इज अ फॉर्म ऑफ कंपटीशन इन विच डिफरेंट स्पीसीज, इंटर की बात करूं तो आपका डिफरेंट स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। इंटर में क्या होता है? इंटर में डिफरेंट स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर मैं बोलूं इंट्रा, अगर मैं इसको डिफाइन करूं क्या इंट्रा, तो दैट मीन्स द कंपटीशन इज बिटवीन द सेम स्पीसीज। किसके बीच में होगा? इंट्रा में सेम स्पीसीज के बीच में होता है। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो कंपटीशन की मैं अगर बात करूं तो ये 2 तरह के होते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, राइट। अगर मैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ कंपटीशन इन विच इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कौन सा? डिफरेंट स्पीसीज, राइट, compete for the same resources in an ecosystem। जब 2 अलग अलग स्पीसीज आपस में compete करेंगे, आपस में क्या करेंगे? compete करेंगे कुछ रिसोर्सेज को लेके, तब हम इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर मैं बात करूं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का, इंट्रा का मतलब क्या होता है? जो कंपटीशन होता है वो सेम स्पीसीज के बीच में होता है। It is an interaction in population ecology whereby members of the same species, intra मतलब क्या? Same
स्पीसीज एंड इंटर का मतलब क्या था, डिफरेंट स्पीसीज, right, compete for limited resources. So this leads to a reduction in fitness for both individuals, but the more fit individual survive and is able to reproduce. मान लो ये यहाँ पे मैंने एक एरिया ड्रॉ किया है, अब यहाँ पे ए ऑर्गेनिज्म भी है, बी ऑर्गेनिज्म भी है, राइट, तो ये दोनों जो है इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए compete कर रहे हैं। अब मान लो अगर दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, ये आउटकम क्या होगा इसका, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होगा, राइट, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होगा। और मान लो कि अगर इन केस इनमें से अगर ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ए क्या करेगा, बी को इस एरिया से निकाल देंगे, राइट, तो ए क्या करेंगे, बी को इस एरिया से निकाल देंगे। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव exclusion. So this leads to reduction in fitness for both individuals, but the more fit individual survive and is able to reproduce. Clear everyone? तो एक एरिया में अगर दो ऑर्गेनिज्म होगा तो दो ऑर्गेनिज्म अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्या करेंगे, ये अनस्टेबल एग्जिस्टेंस को शो करेगा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वीकनेस वाले को वो उस एरिया से हटा देंगे, राइट, तो इसी बात को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन। अब हम देखेंगे इसको। यस, two species competing for the same limited resources cannot coexist at constant population value. अगर ये एक एरिया है, अगर इस एरिया में दो स्पीसीज है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, अगर दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो ये अनस्टेबल एग्जिस्टेंस देगा। और अगर ए स्ट्रॉन्गर हुआ, इफ ए इज स्ट्रॉन्गर, किससे स्ट्रॉन्गर हुआ, देन बी, तो क्या होगा, B will be eliminated out. B क्या होगा, B eliminate हो जाएगा, राइट, और इस एरिया को, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, competitive exclusion। कंपटीशन के वजह से एक का बाहर हो जाने को हम बोलते हैं competitive exclusion, राइट, ओके। अगर मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, ये जो आपका फर्स्ट वाला ग्राफ है, ये है आपका पैरामीशियम ऑरेलिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ इंडिविजुअल पैरामीशियम के मैंने दो स्पीसीज लिया, राइट, एक है आपका पैरामीशियम ऑरेलिया, दूसरा है आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम, राइट। दोनों को मैंने जब इंडिविजुअली ग्रो किया, पैरामीशियम ऑरेलिया का आपका देखो ग्रोथ कितना फास्ट एंड कितना अच्छा हो रहा है। सिमिलरली पैरामीशियम कॉर्डेटम को भी मैंने जब अकेले ग्रो किया, इट इज डूइंग क्वाइट वेल, ग्रोइंग वेल, राइट। लेकिन अब क्या होगा, मान लो दोनों का इक्वली, दोनों अगर प्रेजेंट हुआ, दोनों को मैंने क्या किया, इक्वली एक जगह में ग्रो करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे देखो पैरामीशियम जो ऑरेलिया है ये तो अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम है, इसका देखो, इसका ग्रोथ घट गया है। दैट मीन्स क्या, इन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ है एंड पैरामीशियम ऑरेलिया जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन कॉर्डेटम, तो इसीलिए क्या हुआ, जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो बाहर निकल गए हैं, उसका ग्रोथ डिमिनिश्ड हो गए हैं, मतलब क्या, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन शुरू हो गया है, राइट एवरीवन। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया है, ये दो एरिया है, ये है आपका एरिया 1, ये है आपका एरिया 2। अब आप ध्यान से देखो, इस एरिया में अकेले ये है, इस एरिया में अकेले ये है, तो इन दोनों के बीच में अभी कोई कंपटीशन नहीं है, राइट। ए भी अपने खुद के एरिया में सेफ है एंड बी भी खुद के एरिया में सेफ है, इन दोनों के बीच में अभी कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। अगर मान लो ये एरिया ए है, ये एरिया 2 है, अब ध्यान से देखो, दोनों का एरिया ओवरलैप हो रहे हैं, तो इन दिस केस यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। मान लो अब दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, इसीलिए वो लोग एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं,
वो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं। मान लो इनमें से अगर ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, किससे? बी से। इफ ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, अगर ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ बी से तो बी क्या होगा? बी बाहर आ जाएगा, बी इज एलिमिनेटेड आउट। तो इट मीन्स दैट टू कंप्लीट कंपीटिटर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट टूगेदर। इससे हमें क्या स्टेटमेंट मिलता है कि दो, अगर मान लो अगर एक एरिया में ए बी दोनों है और अगर ए स्ट्रॉन्गर है तो ए क्या करेंगे? बी को बाहर निकाल देंगे। तो इसी बात को लेके एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं क्या? टू कंप्लीट कंपीटिटर्स cannot coexist together, cannot coexist together, right? तो ये स्टेटमेंट इससे राइज होता है। क्लियर एवरीवन? अगर मान लो ये एक एरिया है और यहाँ पे आपका दो कंपटीटर है ए बी, ए अगर स्ट्रॉन्गर है बी से तो ए क्या करेगा? बी को बाहर निकल देगा, राइट? तो इससे जो कंक्लूजन आता है ये क्या आता है कि दो अगर कंप्लीट कंपटीटर्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ सरवाइव नहीं कर पाएगा, उससे इधर एक को बाहर होना पड़ेगा, राइट? ओके, तो कंपटीशन की वजह से हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग। अगर मैं रिसोर्स पार्टीशनिंग को डिफाइन करूं, कैसे मैं डिफाइन करूंगी? ध्यान से सुनो। रिसोर्स पार्टीशनिंग इज द डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज by species to help avoid competition in an ecological niche. In any environment, organisms compete for limited resources. So organisms and different species have to find ways to coexist with one another. मान लो, इसको मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। फाइन, अब क्या होगा? मान लो मैंने आपका इस एरिया को, पहले मैंने इस प्लांट को कंसीडर किया है 1, तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका? यहाँ पे मान लो ये एक बर्ड है, ये भी एक बर्ड है, राइट? ये भी एक बर्ड है। ऐसे मान लो 2-3 स्पीसीज आ गए बर्ड का। ये भी एक बर्ड है, ये भी एक बर्ड है, ये भी एक बर्ड है। अब क्या होगा? मान लो अब ये देखो, अब ध्यान से देखना, ये दोनों बर्ड इसी एक ट्री में फीड कर रहे हैं, राइट? तो इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। किसका कंपटीशन? रिसोर्सेस का। कौन सा रिसोर्सेस? फूड का। कौन सा रिसोर्स? फूड का। तो अब क्या होगा? इनमें से जो स्ट्रॉन्गर होगा वो सरवाइव कर लेगा यहाँ, लेकिन जो वीकर होगा वो बाहर निकल जाएगा, राइट? तो इस कंपटीशन को उनको कंपीट नहीं करना है। उनको क्या करना है? उनको कंपटीशन नहीं करना है। तो वो आपस में क्या करना चाहते हैं? वो आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। मतलब ये जो बर्ड्स हैं ये कंपीट नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ रिसोर्सेस के लिए। वो अपना स्टेबल सा दुनिया में स्टेबल कोएग्जिस्टेंस की तरफ ये मूव करना चाहते हैं। तो इन दैट केस ये क्या बोलेगा? ये जो बर्ड्स है ये अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे कर लेंगे? रेड वाला बोलेगा मैं ऊपर की प्लांट का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें हम लोग फीड करेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आप लोग फीड करो। तो इससे क्या होगा? उससे आपका होगा स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। अगर मैं इसको यहाँ पे ध्यान से आपको बना के दिखाऊं, आपको स्टेबल कोएग्जिस्टेंस समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले में क्या हुआ? मैं उस एक बर्ड ने बोला हम लोग ऊपर वाले में फीड करेंगे, आप लोग नीचे वाले में फीड करो, राइट? तो ये ऊपर वाले किसने ले लिया? रेड वाले कलर ने ले लिया। और जो नीचे वाला, जो प्लांट का नीचे वाला पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो नीचे वाला जो हिस्सा है, उसमें आपका जो ब्लू कलर का बर्ड है वो आपका क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। अब देखो ऊपर वाले में जो आपका इंसेक्ट स्पीसीज मिलेगा, नीचे वाले में कुछ और इंसेक्ट स्पीसीज भी मिल सकते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी। क्योंकि ये दोनों अलग अलग ट्री के अलग अलग पार्ट में फीड कर रहे हैं, राइट?
अगर ये दोनों अलग अलग पार्ट में फीड कर रहे हैं तो इनके पास क्या चांस है कि यहाँ पे जो इंसेक्ट अवेलेबल है, हो सकता है कि वो इंसेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, जो इंसेक्ट, अगर मान लो इस एरिया में जो इंसेक्ट है वो बिल्कुल छोटा वाला है और इस एरिया में जो इंसेक्ट है, मान लो ये बहुत बड़ा वाला इंसेक्ट है, ये क्या है, ये इंसेक्ट है इस वाले पार्ट में और ये है इंसेक्ट ऊपर वाले पार्ट में। तो अब इस इंसेक्ट के वजह से उनका बीक का मॉडिफिकेशन होगा। जो रेड वाला बर्ड होगा उसका बीक छोटा हो जाएगा क्योंकि ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को फीड कर रहे हैं। मैं आपको ये एक एजम्पशन समझा रही हूँ, एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ कैसे होता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, छोटा वाला इंसेक्ट है तो बिग भी क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं, ये तो नीचे वाले पार्ट में फीड कर रहे हैं और नीचे वाले पार्ट में क्या है, आपका जो इंसेक्ट है वो लार्ज साइज के हैं, तो जो प्लांट, जो ऑर्गेनिज्म का बीक होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। तो अब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? इस पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रिसोर्स का पार्टीशनिंग हुआ, मतलब यहाँ जो इन दोनों ने बोला कि भाई तुम यहाँ ऊपर की तरफ फीड करो, मैं नीचे की तरफ फीड करता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग, राइट। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर समझ में? मैंने आपको क्या समझाया, मैं फिर से समझा रही हूँ। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, मान लो ये एक पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, राइट। अब क्या होगा, ये बर्ड्स आपस में कंपटीशन करेंगे फूड के लिए, राइट। हो सकता है ब्लू रेड दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि कौन से किसको फीड करेंगे, राइट। तो इस कंपटीशन के वजह से क्या हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्गर स्पीसीज है वो वीकर स्पीसीज को निकाल देंगे इस पेड़ से, बोलेंगे भाई हम स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग मूव करो, कंपीट करके एक स्पीसीज बाहर आ जाएगा, राइट। लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये आप कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, वो एक स्टेबल एग्जिस्टेंस चाहते हैं, राइट। तो स्टेबल एग्जिस्टेंस के लिए इन्होंने क्या किया, पेड़ को डिवाइड कर लिया दो पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट में जो भी बर्ड्स हैं उन्होंने कहा, रेड वाला जो स्पीसीज है उन्होंने कहा मैं ऊपर वाले पार्ट में फीड करूंगी, और जो ब्लू वाला बर्ड है उन्होंने कहा भाई हम तो नीचे की तरफ फीड करेंगे। तो अब क्या होगा, तो इनके बीच में अब कुछ मॉडिफिकेशंस आएगा। मॉडिफिकेशंस क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, आपका पहली क्या मॉडिफिकेशन आएगा, इन्होंने अपना जो रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। रेड वाला ऊपर वाले की तरफ शिफ्ट हो गए और जो ब्लू वाला है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। उन्होंने अपने रिसोर्स को डिवाइड कर लिया, रेड वाले ने ऊपर वाले की तरफ फीड किया और जो ब्लू वाले हैं वो नीचे वाले की तरफ फीड किया, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे क्या, ये है रिसोर्स पार्टीशनिंग, राइट। अब क्या हो गया, ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें जो इंसेक्ट्स अवेलेबल है वो छोटे साइज के हैं, स्मॉल साइज इंसेक्ट्स अवेलेबल है। स्मॉल साइज इंसेक्ट्स अवेलेबल होने के वजह से इनका बिग साइज में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे मान लो बिग साइज का छोटा हो जाना। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है इसमें क्या हो गया, आपका इंसेक्ट का साइज क्या है, बड़ा वाला बिग साइज इंसेक्ट है। तो इनका जो बिग का मॉडिफिकेशन है ये क्या हो गया, वो बिग भी आपका लार्ज साइज में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर का चेंज होना अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो कैरेक्टर इनका मॉडिफिकेशन होते हैं इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेशन में लिखो, मैं फिर से एक डाउट क्लियरिंग सेशंस लूंगी, वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी इन केस अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ये देखिए ये रिसोर्स पार्टीशनिंग का एक एग्जाम्पल है। ये कुछ वार्बलर स्पीसीज है, वार्बलर स्पीसीज है बर्ड्स के।
इन्होंने क्या किया, वो एक ही प्लांट में फीड करते हैं, राइट। अब ये लोग अपना कंपटीशन को शो नहीं करना चाहते, वो compete नहीं करना चाहते हैं फूड के लिए। तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। तो इन लोगों ने क्या किया भाई, हम लोग अपने रिसोर्स को डिवाइड कर लेते हैं। मतलब ये वाला जो ब्लैक बर्नियन वार्बलर है, उन्होंने कहा भाई मैं इस ऐसे इस वाले साइड वाले एरिया में मैं फीड करूंगा, राइट। फिर जो ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वार्बलर है, उन्होंने कहा भाई मैं मिडिल पोर्शन में फीड करूंगा। जो कोप में वार्बलर है, उन्होंने बोला मैं एपेक्स के पोर्शन में, सिर्फ और सिर्फ एपेक्स के पोर्शन में फीड करूंगा। बे ब्रेस्टेड वार्बलर ने क्या कहा भाई मैं डाउनवर्ड मिडिल की तरफ फीड करूंगा। और जो येलो राम्ड वार्बलर है, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नीचे की तरफ फीड करूंगा। तो ये लोग ने क्या किया, अपने रिसोर्स को डिवाइड कर लिया, रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया, राइट। तो इसी को बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। ब्लैक बर्नियन वार्बलर ने बोला मैं ऊपर की तरफ फीड करूंगा। ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वार्बलर ने बोला मैं मिडिल की तरफ फीड करूंगा। केप मे वार्बलर ने बोला मैं भाई बिल्कुल एपेक्स में फीड करूंगा। बे ब्रेस्टेड वार्बलर ने बोला मैं यहाँ, और येलो राम्ड वार्बलर ने बोला मैं डाउनवर्ड की तरफ। तो इन्होंने आपस के अंडरस्टैंडिंग में रिसोर्स को डिवाइड कर लिया, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, राइट एवरीवन। अब देखो इन बर्ड्स का कुछ बिग्स का साइज अलग अलग है, अगर आप ध्यान से देखोगे, या फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में ये समझाती हूँ, राइट। इस वाले लेट इट बी रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब अगर मैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज अ फेनोमेनन वेयर डिफरेंसेस आर इंड्यूस्ड अमंग सिमिलर स्पीसीज। जो डिफरेंसेस होते हैं वो सिमिलर स्पीसीज में ही आपका डिफरेंसेस होता है। whose distributions overlap geographically are accentuated in regions where the species co-occur but are minimized or lost where the species distributions do not overlap। अगर मैं बात करूं, मान लो ये आपका एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है, राइट। तो मैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये भी एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है। अब क्या हुआ, कुछ बर्ड स्पीसीज जो है, कुछ बर्ड स्पीसीज उन्होंने कहा भाई हम तो ऊपर की तरफ ही फीड करेंगे। मान लो ये कुछ बर्ड स्पीसीज है, उन्होंने कहा हम ऊपर की तरफ फीड करेंगे। और एक बर्ड स्पीसीज आए, उन्होंने कहा भाई हम तो मिडिल की तरफ फीड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मिडिल में फीड करेंगे। कुछ और बर्ड के स्पीसीज आए, उन्होंने कहा हम तो भाई डाउनवर्ड फीड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डाउनवर्ड फीड करेंगे। और कुछ और एक बर्ड का स्पीसीज आए, उन्होंने कहा भाई हम तो ये साइड में फीड करेंगे। जो ये आपके साइड है, हम तो इसमें फीड करेंगे, राइट। हम साइड वाले पार्ट में फीड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स मिलेगा, अगर मैं बात करूं इंसेक्ट की, यहाँ पे जो इंसेक्ट मिलेगा, इस इंसेक्ट का साइज जो है वो बहुत छोटा है। तो इसके वजह से इंसेक्ट का साइज छोटा है, राइट। तो इसके वजह से जो बिग होगा, बिग क्या होगा, बिग भी स्मॉल साइज में मॉडिफाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बीच की बात करूं, बीच वाले में मान लो जो इंसेक्ट है वो मिडिल साइज के हैं, वो क्या है, वो मिडिल साइज के हैं, मान लो ऐसा है। तो इसके वजह से जो बिग का मॉडिफिकेशन होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स बिग का मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे इंसेक्ट काफी लार्ज साइज का है, तो बिग का मॉडिफिकेशन भी काफी लार्ज होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिसोर्स इनका बिग का मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट। तो इस बात को हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। और मान लो इस वाले पार्ट में भी छोटे छोटे हैं, तो इनका भी छोटा छोटा बिग हो गया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर, जो ऑर्गेनिज्म है उस रिसोर्सेज की को फीड करने के लिए उनके कैरेक्टर्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, एंड इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्लियर एवरीवन? या यस? अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आई एम एंडिंग अप द क्लास हियर, and if you are interested to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA1 or DEBA। बेनिफिट्स क्या क्या है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, and you can also join my free live classes
or special classes on Unacademy, right? And if you're preparing for CSI UGC NET, you can subscribe to our YouTube channel. You can also join our Telegram channel. Let's crack CSI UGC NET, right? Thank you so much, students, for joining this session. Hope you like the session and you have enjoyed the class. And if you are more interested, if you are interested for more such videos, you can join me live on Unacademy Plus. Just you need to use my referral code DEBA1 to get access to the free sessions. Right? Thank you so much, students, for watching the sessions. Bye-bye. Take care, everyone. Good night.